नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर। Many MSMEs were totally wiped out. Sir, on farm bills, the government tried to press farm bills down the throat of the farmers. They resisted boldly, and ultimately government had to withdraw the farmer bills. But the farmers are still committing suicide. They are still committing suicide, and the promise to double farmers' income by 2022 is not fulfilled. Sir, PSUs are being disinvested. Banks are writing off 14 lakh crores NPS in the last 9 years. PSUs are being privatized, including profitable ones like the LIC. Sir, I'm coming to the end of my tether. Sir, special advantages are given to some industrial houses, Tatas, Ambanis and Adanis. Adani got most of the airports, including Mumbai airport, by arm twisting, and then cement companies, and then land ports. Ambani's persuaded the government to stop import of laptops since it is bringing out laptops themselves. Tatas are buying Air India, are now buying out Vistara. Government has not given a statement on the Hindenburg research report on the Adani share scam till today. The Prime Minister avoids all discussion on Adani in the House. Sir, today LPG cylinders, as you may know, cost 1,200 rupees. Government earned above rupees 27 lakh crores by increasing duties on petroleum product. Petrol now costs rupees 106 and diesel rupees 92 per litre in my city. Sir, the Prime Minister does not fulfill his promises. He promised 15 lakhs for every household, did not fulfill. He promised 2 crore jobs per year, he did not fulfill. And this lack of compassion was displayed when, during the pandemic, a sudden lockdown announcement, lakhs of migrant workers were seen walking to their homes, some dying on the roadside. Hundreds of dead bodies were found on the banks of the river Ganga. Today, unemployment is the biggest issue. Multinational corporations are sacking large number of technical people, both India and abroad. During the pandemic, 1 crore jobs were lost. Sir, they speak big on nationalism, but China is still camping on Indian territory in Galwan, Ladakh and Doklam, Sikkim. Government cannot do anything. Now the government wants to rewrite history. Is planning to exclude the Mughal period from history books. Will foreign dignitaries not be taken to see the Lal Killa and Taj Mahal, which were built by Mughals? They are promoting people who are not actually good freedom. तो आप देख रहे थे लोकसभा की कार्रवाई और इसके बाद करते हैं अगली खबर की। दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा में पास होने पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि केजरीवाल की सरकार जब से आई है रोना धोना चालू है। इससे पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी। अब इस बिल के आने के बाद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पर फोकस करना चाहिए। दिल्ली पर जो बिल आज राज्यसभा में आया है, अभी अभी खबर मिली है कि वो पास हुआ है। इससे पहले लोकसभा में भी पास हुआ था। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो संघीय ढांचा सोचा गया था, जिसमें दिल्ली को कभी पूरा राज्य ना देने की बात थी, जिसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके कई आयामों में साथ करने की बात कही गई थी, और एक तरीके से इस बंटवारे में जो सर्विसेज हैं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन पर जितना दिल्ली सरकार का वर्चस्व और कंट्रोल रहना चाहिए उतना भारत सरकार का भी होने का था। और ये सिस्टम कई वर्षों से दिल्ली में बेहतर तरीके से चल रहा था। दुर्भाग्य से जब से केजरीवाल यहां आया है,
उसने केवल और केवल राजनीति देखकर, जिस बदतमीजियों से, जिस गैर संवैधानिक व्यवहार से उसने दिल्ली को चलाने की कोशिश की और भारत सरकार से बार बार झगड़ा कर कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की बात की, इसी कारण से ये बिल भी आया, अन्यथा ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। मैं ये नहीं कुछ कहूंगा कि मुझे कोई संतोष है या कोई वो है कि ये बिल पास हुआ या नहीं, पर मुझे लगता है कि जिस स्थिति में लोगों ने हमेशा समझा था कि दिल्ली को एक भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक साझी सरकार के रूप में चलाया जाएगा, इस बिल के पास होने के बाद शायद वो यथास्थिति बनती है। अब मैं आशा करूंगा कि फिर से रोने धोने और उल्टी सीधी बातें करने और बयानबाजी के अलावा कोशिश करेगा केजरीवाल को, जो 9 साल में उसने काम नहीं किया है दिल्ली में, कम से कम ये बचे हुए 1-1.5 साल। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा है कि वो इंडिया को विपक्षी गठबंधन के तौर पर नहीं बल्कि अगली सरकार के गठबंधन के तौर पर देखते हैं। ठाकरे ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मोदी उपनाम केस में मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है और राहुल गांधी ने को संसद में बहाल किया गया है, ऐसे में पूरा देश इस फैसले के बाद खुश नजर आ रहा है। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल, मुझे लगता है पूरा देश स्वागत कर रहा है, क्योंकि यही बात है कि किसी से भी, कोई भी सांसद हो या विधायक हो जो जीत के आते हैं जनता से, उनसे आप उनका हक छीन नहीं सकते। और यही बात हम कहते आए थे, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही और उनको ये दोहराई है, ये दिलासा दिया है कि कोई इनका हक छीन नहीं सकते, अधिकार छीन नहीं सकते। वायनाड को अपनी आवाज वापस संसद भवन में मिली, लेकिन अगर आप देखें तो जो भी सत्य के साथ लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, सत्य के खिलाफ नहीं, सत्य के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। वो आज आपने देखा होगा, ये बड़ा दिलासा है। पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं अपोजिशन की आवाज को मजबूती मिले, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है राहुल गांधी। बिल्कुल, लेकिन हम अभी अपोजिशन नहीं, आने वाली सरकार समझ। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई पर। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, यू आर वेरी सीनियर पर्सन, आप बैठ जाइए। सुप्रिया सुले जी, गो टू योर प्लेस, टेक योर प्लेस। But I don't want to be disturbed. हाँ, यू कैन। Sir, please start my... सुप्रिया जी, सुप्रिया सुले जी, प्लीज टेक योर प्लेस। Sir, I stand here today on behalf of the NCP and the India team to speak in support of this no confidence motion. Sir, why do you really think we brought this no confidence motion? It's because we are representative of the Indian citizens. And that's why the sentiment of the nation is what we are standing here for. This is what people tell us. What does a member of parliament do? He is the voice, or she is the voice of what the citizens of India feel, and that's our moral duty. And I thank Gaurav Gogoi ji for moving this motion, which is the true emotion of an Indian citizen today. There's a Mr. Friedman, who's one of the best economists the world has ever seen. I'd like to quote him by saying, one of the great mistakes is to judge policies and programs by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, but what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's. तो ये आप देख पा रहे थे राज्यसभा की कार्रवाई। और उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का हाथ कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक के ऊपर है, और इस पर उन्होंने निशाना साधा है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे कैसे लिए, चीन की ओर से कहां कहां इसका इस्तेमाल किया गया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और जनता को ये बताना चाहिए।
न्यूज क्लिक पे मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ। कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहां कहां मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। अब देश से माफी मांगिए कि जो चाइना न्यूज क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। राहुल गांधी जी, जब आप सदन में आ रहे हैं तो आप देश को बताइए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनसे फंडिंग प्राप्त हुई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि न्यूज क्लिक के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आई। न्यूज क्लिक पे मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ। कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सुनाते हैं लोकसभा के बाद राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पास होने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बौखलाए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आम आदमी के सिपाही हैं। हम इनसे डरते नहीं, इनसे लड़ते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सप्ताह में 2 बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषक गहलोत के बयान को सोची समझी हुई रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। विश्लेषकों का तर्क है कि चुनाव के पहले गहलोत का इस तरह का बयान देना उनकी मजबूरी है। गहलोत अच्छी तरह से ये जानते हैं कि चुनाव के बाद यदि सरकार रिपीट होती है तो एक बार फिर पायलट कैंप से उन्हें चुनौती मिलेगी। ऐसे में चुनाव के पहले गहलोत सियासी मैसेज देना चाहते हैं ताकि पब्लिक की सहानुभूति मिल सके। गहलोत कह चुके हैं कि वो जो कुछ भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। बापू देवी ने कहा मेरा हार्ट बदल गया। हार्ट बदलना बहुत बड़ी बात है। क्या आप बार बार मुख्यमंत्री बनो? अरे बापू देवी जी, आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। बात सुनो, मैं कहता हूँ हर बात में बोलता हूँ सोच समझ के बोल। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। मैं कहना चाहूँगा मीडिया वालों को सबको, मैं समझता कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेडी कर दी। सोच समझ के बोलता हूँ हर शब्द में राजनीति में। इस पर क्या बोला था, मन में आता कि भाई छोड़ दे, क्यों आता वो छोड़ेगा, वो तो रहस्य है। मन में आता है छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कहने हिम्मत चाहिए आदमी, और हाईकमान फैसला करे वो मुझे मंजूर है। आप सोचिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद कर रहा हूँ भाई कि हाईकमान का तो फैसला मेरे मंजूर हो गया होगा, पर ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए भाई कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी सदन में योगी वर्सेस अखिलेश। कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी 86 में 56 बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56। इसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मतलब? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आज फिर आप बोलो।
माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे 17 साल के एज तो आ रहा हूँ, कितने बच्चे जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूं कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उत्तर आ गया, लाइव तो नहीं है, देखिए ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है, और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है, और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद मंत्री आतिशी और ज्यादातर ताकतवर हो गई हैं। उनको सर्विस और विजिलेंस विभाग दिया गया है। अभी तक ये विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंत्रालय में बदलाव की मंजूरी वाली फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दी है। आतिशी के पास इन 2 विभागों के अलावा वित्त, बिजली, शिक्षा, महिला, पीडब्ल्यूडी विभाग, आर्ट और कल्चर, भाषा, टूरिज्म की भी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।